Hello everyone, welcome to Exam Base. So my name is Kailash Tiwari, ex of Union Bank of India. So student, today we'll be discussing about the great opportunity for all the IT graduate. This is about the SEBI IT. Okay, so SEBI IT 2025 recruitment is now concluded. Everything is out now. There from the result to the joining, everything is done. So we can expect 2026 notification anytime in this year. So this is the upcoming examination, and this is the only government job with a salary 1,80,000 plus. So you can understand this is the only organization which is giving you high salary, and that too without any experience. No experience is required, and also the job at SEBI. So you know very well the SEBI is a leading regulatory body. Leading means the only regulatory body for our stock market. So in this video, we'll be discussing about the eligibility examination pattern, syllabus, and the cutoff, and all the important information about this notification. Okay, so starting with this, and first we will understand. First, I will show you how this is a great job. As you can see, the last year notification here only they have mentioned the salary 1.84 lakh without accommodation, and if they will be providing the accommodation, then HRA will be not there. So the salary will be 1.43 lakh and 1.43 lakh plus accommodation. So you can understand the maximum part of expenses of any person is towards the accommodation only. So this they are providing, and apart from that they are providing various allowances and so many things they are providing. So this is definitely one of the great job. Then if you will see the vacancy trend, so nearly every year they are coming with the vacancies. In 2022 they came with the notification twice. Okay, however there was no vacancy in June 2023 because the July 22nd late recruitment was going on, and then in March 24 and 25 you can see. So every year they are coming with the vacancy. So that's why you can prepare for this particular examination. Now the last time vacancy, if you will see, it was 22, but the important thing is the educational qualification. एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जो एज एलिजिबिलिटी है वो आपकी एज 30 ईयर से कम होनी चाहिए. ओके, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी में बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एनी ब्रांच, भाई किसी भी ब्रांच में हो, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो भी आप एलिजिबल होते हैं. तो बस इजी हो गया है. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ITCS के ही एलिजिबल होंगे, सभी एलिजिबल हैं. तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए है. अब मोड ऑफ सिलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है इसका. अगर आप देखेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन, तो प्रीलिम्स होता है फेज 1 जिसको हम कहते हैं, देन फेज 2 होता है, एंड देन फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है फेज 3. अब यहाँ पे जो फेज 1 है दोस्तों, इसमें 2 पेपर होते हैं. पेपर 1 होता है जिसमें कि क्वेश्चंस होते हैं जनरल अवेयरनेस के, इंग्लिश के, क्वांट्स के एंड रीजनिंग के. ओके, और इसके मार्क्स होते हैं टोटल 100. 60 मिनट्स का टाइम दिया जाता है. इसका जो फाइनल मतलब इसका रिजल्ट आएगा पेपर 1 का, उसमें इसका परसेंटेज केवल और केवल 30% होता है. देन 40% किसका होता है, मतलब 30% आपको लाना होता है. 100 में से 30 नंबर आपको एटलीस्ट लेकर आने हैं क्वालिफाई करने के लिए. पेपर 2 में आप देखेंगे तो सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक स्ट्रीम रिलेटेड एग्जामिनेशन होता है. ये भी 100 मार्क्स का है. इसमें आपको 40 मार्क्स मिनिमम लेकर आना. सिंपल है. कोई ऐसा कट ऑफ डिसाइड नहीं होगी कि जितने बच्चों को सिलेक्ट करना उस बेसिस पे नहीं. जितने भी बच्चों के 30% मार्क्स, 40% मार्क्स एंड ओवरऑल 40% मार्क्स से ज्यादा आ गए, उसका सिलेक्शन फेज 2 के लिए हो जाएगा. तो इसी वजह से ये एक बहुत मोटिवेटिंग एग्जामिनेशन है. बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन फेज 2 के लिए इजीली हो जाता है. अब जब फेज 2 के लिए हो गया तो फेज 2 में क्या होगा, तो ये तो खैर इसकी नेगेटिव मार्किंग एंड ऑल डिटेल्स बताई है. फेज 2 अगर हम देखेंगे तो फेज 2 में पेपर 1 होता है जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होता है, जैसा कि हर रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन में होता है, 100 मार्क्स का होता है. इसका देखिए कि कट ऑफ 30% मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं, और इसका वेटेज 1/3 है मेरिट में. 50% नहीं है, इक्वल नहीं है, 1/3 है. देन 2/3 किसका है, तो वो IT स्ट्रीम का जो आपका टेस्ट होगा उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs होंगे. 100 MCQs होंगे, मिक्स ऑफ लॉजिक, फ्लो, कंप्लीशन, डीबगिंग, ये सारा सिलेबस दिया रहता है. 100 मार्क्स का रहेगा. 180 मिनट्स का टाइम बहुत ज्यादा दिया है इन्होंने, और इसमें आपको 40% मार्क्स को एटलीस्ट लेकर आने, और 2/3 इसके मार्क्स कंट्रीब्यूट करेंगे फाइनल मेरिट पे. और इसके बेसिस पे फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के लिए. और इंटरव्यू का जो वेटेज होता है अगर आप देखेंगे वो
उसमें इंटरव्यू के अंदर हम देखेंगे 100% में से 75% इंटरव्यू का वेटेज, और अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो उसको यहाँ पे वेटेज देते हैं। ओके, हालांकि ये अगर आप देखेंगे ये लीगल के लिए है, इंजीनियरिंग के लिए है, इंजीनियरिंग सिविल के लिए है, बट आईटी के लिए ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया है। हाउएवर दे हैव मेंशन, मतलब अगर आपके पास जॉब है, आपने अच्छे कॉलेज से किया, कोई भी एडवांटेज है तो उसका बेनिफिट आपको इंटरव्यू में मिल जाएगा, अदरवाइज ऐसा कोई भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि यहाँ पे कोई बिना किसी एक्सपीरियंस के आपका ओवरऑल इतनी अच्छी सैलरी और जॉब मिलती है। फाइनल सिलेक्शन में जो फेज 2 का परसेंटेज है वो 85% रहेगा और इंटरव्यू का 15% वेटेज रहेगा, और इसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये थी दोस्तों इसकी एग्जामिनेशन प्रोसेस। इसका सिलेबस दिया हुआ है जो हमने अपनी पहले वीडियोस बनाई है, उसमें आप देख सकते हैं। ये आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ITB, उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए दोस्तों, वहां पे आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे फॉर IT रिलेटेड जॉब्स एंड ऑल। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे वैकेंसीज, एप्लीकेशन, कैंडिडेट कितने अपीयर हुए थे इस साल, वो थे 14,799। फेज 1 की कट ऑफ तो फिक्स्ड ही है। नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर फेज 2 2229 हुए थे, और जिसमें से कि फेज 2, खैर ये तो फेज 2 की कट ऑफ है तो आप सभी को पता है, ये ओवरऑल कट ऑफ है। और फेज 2 के बाद कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज। 22 वैकेंसीज यहाँ पे थी इस बार। ओके, जनरली 3 टाइम्स वो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, तो और थोड़ा बहुत रिजर्वेशन से के वजह से हम कह सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट एग्जैक्ट 66 नहीं होंगे, थोड़े से ज्यादा डेफिनेटली होंगे। तो ये थी ओवरऑल कट ऑफ इस बार की। जो नेक्स्ट ईयर के लिए स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं, डेफिनेटली आज आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कट ऑफ और सारी डिटेल आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल टेबल में मैंने शेयर किया। इसको मैं अपने ITB टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, जहां से आप इसको देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए। iXamB is the only platform providing the best course for all the streams of the IT examination, be it legal, IT, Rajbhasha, or any other. And today, because of the month end offer, we are providing this course for 35% off. So you can enroll now. For any doubt, query, question, you can connect us anytime. Feel free to ask any of your doubt, because this is the question of your future. So this is all for today. Thank you for watching this video and have a great day ahead.